Hello students, today the chapter that we are going to discuss is chapter number 4 from your Beehive textbook, and that is A Truly Beautiful Mind. As you can see in this picture, I am sure कि आपने recognize कर लिया होगा कि who this great person is. So yes, this person is Albert Einstein. So the title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. तो हम इस chapter में Albert Einstein के बारे में बात करेंगे. It is so because in this lesson we will come across the another aspect of Einstein. So to see that, let's move forward and see what the story tells us about Albert Einstein. The story recounts the life of an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his death. तो इस चैप्टर में आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के पूरे हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डेथ, कि हाउ विच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही हैड और वो कितने आउटस्टैंडिंग थे इन एवरी फील्ड. मूविंग फॉरवर्ड, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Destined मतलब जिसे हम fate बोलते हैं. Okay, now they are telling that he was born in a city named Ulm, that is in Germany, and then when he was a child, no one could even predict that one day he would become a great scientist. क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमें उतना नहीं पता होता कि yes someday we are going to become something. So when he was born तो किसी को ऐसा नहीं लगा था कि he is going to become a great personality in the future, because he was just like all other children. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Freak क्या होता है? A word used for a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. तो इसकी मदर को ऐसा क्यों लगता था कि my child is different from other child? इसके मदर को ऐसा लगता था कि बाकी जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चा जो एल्बर्ट है उससे डिफरेंट है, क्योंकि मेरा बेटा कुछ अलग ही है. उनको ऐसे क्यों लगता था? बिकॉज टू हर his head seemed too much large. Freak word, like I told, it is a word used to tell about a person who doesn't behave properly. तो अब इसका मतलब टू हर हिज हेड सीम टू मच लार्ज का मतलब है एल्बर्ट्स मदर शी थॉट दैट द लिटिल बॉयज हेड वॉज टू बिग इन कंपेरिजन टू अदर चिल्ड्रन. अगर वो बाकी बच्चों को देखते थे तो उनका ऐसा लगता था कि उनके बेटे का सर बाकी बच्चों से ज़्यादा बड़ा है. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. Usually what happens when a child is 2.5 years old, तो वो छोटे छोटे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है. बट जब एल्बर्ट ही वॉज अ चाइल्ड तो 2.5 years तक उसने बोलना नहीं सीखा था. ही वॉज नॉट एबल टू अटर इवन अ सिंगल वर्ड. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. So now when जब उसने he started talking, तो he was that time 2.5 years old, and then when he started speaking, he used to repeat the words. Uttered मतलब एक चीज़ को बार बार बोलना, मतलब वो एक चीज़ को properly नहीं बोल सकता. जैसे नहीं तो he used to utter no 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 like this type. Alright. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So now अब इसमें क्या बताया जा रहा है आइंस्टाइन के बारे में? दैट ही यूज्ड टू रिमेन हिमसेल्फ ऑल द टाइम. हिमसेल्फ मतलब वो हमेशा अपने में ही टाइम स्पेंड करता था. तो दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्टली उसके जो फ्रेंड्स थे वी यूज्ड टू कॉल देम ब्रदर बोरिंग, क्योंकि वो कुछ भी यूनिक एक्टिविटीज़ नहीं करता था. His playmates used to call him brother boring because he remained to himself. He did not play or talk to them. He especially loved mechanical toys. So, from the very beginning, since his childhood, he loved mechanical toys. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी गर्ल, तो उनको ज़्यादा क्या पसंद आता है? एनी डॉल और समथिंग, राइट. पर आइंस्टाइन को बचपन से ही मैकेनिकल टॉयज़ का बहुत शौक था, एंड ही यूज्ड टू प्ले विद दैट मैकेनिकल टॉयज़.
एंड सच टॉयज इन विच सम काइंड ऑफ मशीनरी वॉज यूज, मतलब वो नॉर्मल टॉयज़ नहीं, कुछ मशीनरी टॉयज से खेलना उसे पसंद था, जैसे ऑटोमेटेड एरोप्लेन्स हो गए या फिर ऑटोमेटेड कार्स हो गए. So this is the picture of Albert Einstein when he was small. Looking at his newborn sister Maja, he said to have he said, "Fine, but where are her wheels?" So now what happened? जैसे इसकी, as you can see in the picture, this is Albert and this is his younger sister Maja. तो जैसे उसने अपने सिस्टर को देखा when she was newly born, तो उसने पूछा कि where are her wheels? What does that mean? That means that जब उसने अपनी बहन को पहली बार देखा था, जब वो पैदा हुई थी, तो he could not see her feet, क्योंकि बच्चे when they are born they are very small, right? So he was wondering where the baby's wheels were. Baby's wheels मतलब होता है where are the feet of the baby, क्योंकि Albert Einstein used to play with toys and all his toys had a set of wheels. Like in the previous slide I told you कि वो mostly उसको toys कौन से पसंद थे, मैकेनिकल, जो मशीनरी वाले थे, और उसके सारे toys में wheels लगे हुए थे. एंड वो ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करता था, वो उसके कोई भी फ्रेंड्स उसे पसंद नहीं करते थे व्हेन ही वाज स्मॉल. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता था, वो अपने टॉयज से खेलता था जिसमें व्हील्स थे. तो उसको ऐसा लगा था कि एवरीवन हु इज़ बॉर्न विद व्हील्स, क्योंकि उसने अपने टॉयज में यही देखा था. दैट इज़ द रीज़न वाई ही आस्क्ड एवरीवन दैट वेयर आर हर wheels. As you can see here, he is asking where are her wheels. Alright. A headmaster once told his father, who is his here, यहाँ आइंस्टाइन की बात हो रही है कि एक बार आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उसके फादर को क्या बोला था, that what Einstein choose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. Firstly, before explaining this thing, this line which is used is very bad here. Being a teacher या फिर being any person, normal person, if I'm talking about you or if I'm talking about me, we don't have any right to talk about any person this way. जैसे especially see, a teacher is someone जो मोटिवेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को. बट हियर इसके हेडमास्टर ने क्या बोला इसके फादर को कि दैट योर सन, वो चाहे जो भी प्रोफेशन यू चूज़ करेगा, वो कभी भी उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं होगा. ओके तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने हेडमास्टर की बात को रॉन्ग प्रूव किया, एज वी ऑल नो हाउ वी डिड इट. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. तो आइंस्टाइन की मदर चाहते थे कि वो वायलिन सीखे, और उन्होंने एट द एज 6 ईयर्स की एज में वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था. He later became a gifted amateur. Amateur मतलब doing something for personal enjoyment rather than a profession. मतलब वो अपने इसको एक प्रोफेशन नहीं बनाया, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने ये स्किल थ्रू आउट द लाइफ अपने आप उसमें मेंटेन की. ही प्लेड दिस वायलिन एज अ हॉबी बट नॉट एज अ प्रोफेशन. मतलब उसको वायलिन बजाना अच्छा लगता था और उसने सिर्फ एक हॉबी रखी. अगर वो चाहते व्हेन ही बिकेम परफेक्ट, वो चाहते तो वो वायलिनिस्ट बन सकते थे, बट उन्होंने ये प्रोफेशन को ऑप्ट नहीं किया. But Albert was not a good pupil. Pupil here indicates a student. That means Albert was not a very good student. He was a very good student. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. So he went to a school in Munich because his family had moved. एंड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, उसने क्या किया, उसके हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे. तो इस स्लाइड में हमें क्या पता चला कि आइंस्टाइन को
when he was small at the age of 6, उसके मदर चाहते थे कि वो वायलिन प्ले करे एंड ही प्लेड वायलिन ऑल्सो, एंड उन्होंने इसको एक हॉबी ही रखा, इसको प्रोफेशन चूज़ नहीं किया. एंड इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ही वॉज नॉट अ बैड पीपल, मतलब वो एक अच्छा बच्चा था. एंड ही वेंट टू स्कूल, जब वो स्कूल गया तो उसको हर एक सब्जेक्ट में ही स्कोर्ड गुड मार्क्स. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teachers. Regimentation का मतलब होता है ऑर्डर या डिसिप्लिन. तो उनको, आइंस्टाइन को जिस स्कूल में वो जाते थे वहाँ के रूल्स या फिर वहाँ के डिसिप्लिन बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. क्लैश मतलब उनकी हमेशा लड़ाई होती थी अपने टीचर्स के साथ, क्योंकि जो टीचर्स कुछ रूल्स बनाते थे तो उनको वो पसंद नहीं आते थे. तो ही यूज्ड टू स्पीक अप फॉर what he didn't like. At the age of 15, Einstein felt so stifled मतलब होता है suffocated. Suffocated कब होते हैं आपकी, जब आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है और आपको उसी चीज़ में रहना पड़ता है, तो आपको उस टाइम क्या होता है, आपको घुटन जैसी महसूस होने लगती है. दिस इज़ द सेम थिंग दैट हैपन टू आइंस्टाइन एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. मतलब एक रीज़न की वजह से, दिस वॉज द रीज़न जिसके वजह से उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया था. Okay, so because the school where Einstein went had a very strict discipline which he disliked, उसे उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, and that is the reason why he always clashed with the teachers' opinion and opposed them. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. तो अब इसमें क्या हुआ, उसके पेरेंट्स when he left the school one year before that, मतलब the previous year means 1 year before that, his parents have moved to the another city which is in Italy. मिलान इटली में है. and Albert was left behind, उसको वहीं उसी जगह में छोड़ दिया था. with whom? with their relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. Liberal होता है where liberal means a place or a thing जहाँ आप एक दूसरे पर्सन के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं. लाइक हमने अभी पढ़ा था कि द प्रीवियस स्कूल इन विच आइंस्टाइन स्टडीड, उस स्कूल में वहाँ का उनको रेजिमेंटेशन बिल्कुल, डिसिप्लिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई उनके हमेशा टीचर्स से बहस होती थी. तो इस स्कूल में, जिस स्कूल में आइंस्टाइन जाना चाहता था वो मोर लिबरल था, मतलब वहाँ आपके डिसीशंस को रखा जाता था, मायने दिए जाते थे. इफ़ यू डोंट लाइक समथिंग तो उसको चेंज किया जाता था या फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता था. So his parents, this is the school जहाँ वो जाना चाहता था, and his parents agreed to it. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. तो आइंस्टाइन वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़, हमने पहले स्लाइड में भी पढ़ लिया था. एंड ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स and he was interested in physics. And then once he completed, he finished his school. उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी? Zurich. But science was not the only thing that appealed to the dashing young man with a walrus mustache. Walrus mustache, as you can see in the picture, ये एक मुस्टैच की शेप को walrus कहते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख ही पा रहे हैं. तो नाउ व्हाट आर दे सेइंग कि सिर्फ साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे ये इम्प्रेस थे. इनफैक्ट वो एक और चीज़ से इम्प्रेस थे. एंड व्हाट वाज दैट थिंग? ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट, मिलेवा मेरिक, हु ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रीचर. नाउ अदर देन साइंस ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स, और वो इंटरेस्ट क्या था? दैट ही लाइक्ड वन ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट्स, और उनका नाम क्या था? मिलेवा. ठीक है. तो ही थॉट दैट शी वॉज वेरी clever, sharp and intelligent. A clever creature मतलब a person who is very sharp and clever. Fellow student मतलब जहाँ जिस कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहे थे, there only he fell in love with a girl
who was also a very clever person. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Here this young Serb किसे use किया गया है, किसके लिए use किया गया है? To the lady whom Einstein loved, and her name was Mileva Merrick. तो अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी में वुमेन को एडमिशन दिया जाता था. अदरवाइज द रेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ वुमेन के लिए कोई एंट्री नहीं थी, बिकॉज दे थॉट एट दैट टाइम कि वुमेन आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल सिर्फ इतनी ही एजुकेशन वुमेन के लिए काफ़ी होती है. तो यूरोप में एक ऐसा यूनिवर्सिटी थी विच गेव एडमिशन टू वुमेन, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई this girl Mileva came to this university, and then there she met with the handsome young man that is Albert Einstein. Okay, the couple fell in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Words wrote Einstein, "How happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion." In 1990, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and employed. मतलब जब at the age of 21 he completed his graduation and he was unemployed. और when this couple fell in love, तो letters survive. तो इनकी मोस्टली कैसे बात होती थी? लेटर्स के थ्रू, क्योंकि अर्लियर मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे. ये हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, किस ईयर की? एज यू कैन सी हियर 1900. ओके, तो उस टाइम मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो द ओनली वे टू कम्युनिकेट वॉज लेटर्स. अगर आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो उस टाइम, उनके टाइम में लेटर्स सर्वाइव किया करते थे. एंड इन लेटर्स में इनकी मोस्टली क्या बात होती थी कि बिकॉज बोथ ऑफ देम वर वेरी क्लेवर. तो इनकी बात होती थी कि अगर हम दोनों एक साथ कुछ भी काम करेंगे तो उसका कंक्लूजन बहुत अच्छा होगा. दैट मीन्स हम कोई भी काम को साथ करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in a patent office in Bern. Okay, अब हमने क्या पढ़ा? 1900 में इनकी ग्रेजुएशन हो गई थी एंड ही वॉज अनएम्प्लॉयड, मतलब इनको कोई भी उस टाइम नौकरी नहीं मिली थी. तो इन्होंने क्या काम स्टार्ट किया था? ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, और उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन देना स्टार्ट किया था. एंड आफ्टर 2 years ही गॉट अ जॉब. और वो जॉब क्या थी? पेटेंट का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर. मतलब पेटेंट होता है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर अपनी कोई चीज़ नहीं बनाते थे, इन्वेंशन करते थे, तो उसका एक नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पेटेंट. While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secrets. मतलब आइंस्टाइन का काम क्या था? ही वॉज सपोज टू चेक द इन्वेंशंस डन बाय अदर पीपल, और उनको पेटेंट देते थे. पेटेंट मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसमें आप लोग अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स यू द राइट कि उस पर्सन ने वो इन्वेंशन किया, ये राइट देते हैं. ठीक है, तो इनका काम ये था कि अगर किसी पर्सन ने इन्वेंशन की है तो उनको वो पेटेंट देते थे. एंड ऑन द अदर हैंड ही वॉज सीक्रेटली मेकिंग हिज ओन इन्वेंशंस टू. मतलब वो किसी और को नहीं बताते थे, पर वो अपने ही सीक्रेटली कुछ ना कुछ इन्वेंशंस किए जाते थे. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो आइंस्टाइन लेटर उन्होंने क्या बोला कि द डेस्क इन विच ही वॉज वर्किंग, जो ऑफिस का था, उन्होंने कहा था कि ये वो वर्क है जहाँ मैंने इन्वेंशंस करने स्टार्ट किए थे. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which
टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. नॉट एब्सोल्यूट का मतलब होता है इज नॉट मेजर्ड इन इटसेल्फ. मतलब है कि इन द ईयर 1905 आइंस्टाइन ने अपना फर्स्ट पेपर पब्लिश किया था एंड उसका नाम क्या था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो इस पब्लिकेशन में इट वाज रिटन दैट मेजरमेंट और डिस्टेंस सेम एक साथ मेजर नहीं हो सकते, वो किसी और पे डिपेंड होते हैं. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Okay, I think this slide you won't be able to understand properly. इसमें क्या बोला गया था कि जो दो perfectly accurate clocks हैं, मतलब इस according to this theory, if there are two clocks एंड बोथ आर मूविंग, मतलब अगर दो क्लॉक हैं और दोनों मूव कर रहे हैं, दे विल नॉट शो द सेम टाइम. वो दोनों एक साथ एक ही जैसा टाइम नहीं दिखाएंगे. वन क्लॉक विल मूव फास्टर दैन द अदर. एक क्लॉक दूसरे क्लॉक से ज़्यादा तेज चलेगी. फ्रॉम दिस फॉलोड, मतलब इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विच थ्योरी एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने अपने फिजिक्स में ये थ्योरी पढ़ी होगी. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस गेव अस द बेसिक फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स. ई का मतलब क्या होता है यहाँ, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी. आई एम श्योर एवरीबडी नोज दिस. मूविंग फॉरवर्ड, एंड व्हाट डज एम स्टैंड्स फॉर? एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सी स्टैंड्स फॉर द स्पीड. सो नाउ हियर स्पीड ऑफ द लाइट. तो इसमें इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने टू पुट इट इनटू सिंपलर वर्ड्स, आइंस्टाइन ने बोला था दैट व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, मतलब आप किसी एक लड़के के साथ अगर 2 घंटे के लिए बैठते हैं तो इट सीम्स लाइक 2 minutes. ओके, अगर आप किसी नॉट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ गर्ल, अगर इफ़ यू आर सिटिंग विद अ पर्सन जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, जिसकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है, तो व्हाट विल हैपन, आप उसके साथ अगर 2 घंटे का भी टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी तो सिर्फ 2 ही मिनट हुए हैं, राइट. बट इफ़ यू आर गोइंग टू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, अगर आप एक कोई गैस या फिर एक बहुत बर्निंग सी चीज़ पे अगर 2 मिनट के लिए भी बैठ जाएंगे तो हाउ विल इट सीम? इट विल सीम लाइक 2 hours, right? So this is the theory of relativity. That's relativity. इसलिए उन्होंने इसको relate किया था ताकि a person would feel the timing differently. Students, this is enough for today's video because I know there are few terms in which you will get confused. That is the reason why I thought to bring some examples जिससे आप थोड़े उसको so that your concepts क्लियर हो जाएं आपके. सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड आई वॉन्ट यू दैट यू गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली एंड देन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अनदर वीडियो टुमारो, बिकॉज continuing with the same video with the same chapter in one video will be very difficult and you won't be able to understand because this chapter is a little bit a small little bit different and difficult. Otherwise अगर आपने इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया देन इट विल बी ईजी एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है. सो स्टूडेंट्स, this is enough for today. Just go through this video again and again.